अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोज़ के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। आप ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है, आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोज़ मौजूद हैं। Students, I am taking all these contents of this chapter from the Punjab textbook board. In previous video, we were discussing about the unit number 2, Chinese New Year, चीनियों का नया साल. First of all, I am giving you some brief introduction about this chapter. Chinese New Year, also called Lunar New Year, annual 15-day festival in China and Chinese communities around the world that begins with the new moon that occurs sometime between January 21 and February 20 according to Western calendars. Festivities last until the following full moon. The holiday is sometimes called the Lunar New Year because the dates of celebration follow the phases of the moon. Since the mid 1990s, people in China have been given 7 consecutive days of work during the Chinese New Year. This week of relaxation has been designated a Spring Festival, a term that is sometimes used to refer to the Chinese New Year in general. The origins of the Chinese New Year are steeped in legend. One legend is that thousands of years ago, a monster named Nian would attack village at the beginning of each new year. The monster was afraid of loud noises, bright lights, and the color red, so those things were used to chase the beast away. Celebration to usher out the old days, old years, and bring forth the luck and prosperity of the new one, therefore often include firecrackers, fireworks, and red clothes and decorations. Young people are given money in colorful red envelopes. In addition, Chinese New Year is a time to feast and to visit family members. Many traditions of the season honor relatives who have died. Among the Chinese New Year traditions is the thorough cleaning of one's home to rid the resident of any lingering bad luck. Some people prepare and enjoy special food on certain days during the celebrations. The last event held during the Chinese New Year is called the Lantern Festival, during which people hang glowing lanterns in temple or carry them during nighttime parade. Since the dragon is a Chinese symbol of good fortune, a dragon dance highlights festival celebration in many areas. This procession involves a long, colorful dragon being carried through the street by numerous dancers. So students, this was a brief introduction about this chapter. Now we move on to the exercise of this chapter. First one is about the glossary. In glossary there are some difficult words related to the chapter. First one is association. Association यानी कि ताल्लुक, feeling that is connected with a particular event. These are actually synonyms of these difficult words. Celebration. Celebration means जश्न मनाना, party or special event at which you celebrate something. Customary मामूली या रिवाज के मुताबिक, यूजुअल फॉर समबडी, गैदरिंग इकट्ठे होना, इज्तमात, ब्रिंगिंग टुगेदर और कमिंग टुगेदर ऑफ पीपल ऑफ अ फैमिली, ल्यूनर यानी कि कमरी रिलेटिंग टू द मून, पार्टेक टेक अ पार्ट और शेयर इन, रेसिपिएंट रिसीवर, रिनविगुरेट यानी कि ताकतवर बनाना, मुस्तहकम करना, स्ट्रेंथन, सिम्बोलाइज अलामत के तौर पर,
To represent something by means of a symbol, traits, khususiyat means characteristics. Next one is about the vocabulary. फर्स्ट क्वेश्चन, गिवन द मीनिंग ऑफ ईच वर्ड एज यूज्ड इन द लेसन. यहाँ पर जितने भी वर्ड्स दिए गए हैं उनके वो मानी पूछ रहे हैं कि वोकैबुलरी में क्या मानी होंगे. फर्स्ट वन इज़ गैदरिंग यानी कि इज्तमात, थॉरोली मुकम्मल तौर पर, पार्टेक हिस्सा लेना, इन्विगोरेट मजबूत करना या मुस्तहकम करना, कस्टमरी रिवाज होना या मामूल होना, कॉमन प्लेस मामूल, ट्रेड्स खसूसियात. नेक्स्ट बी क्वेश्चन, from a noun from the given words and use the noun in sentences. This is also related to the vocabulary. For example, celebrate से celebration. ठीक है, तो यहाँ पर हमने इनके sentences बनाने हैं nouns के. gathering, gather से gathering बनेगा. So and the sentence is the result was declared in big gathering. symbol, symbolic से symbol बना है. the O is a symbol of फॉर ऑक्सीजन. ठीक है, और जो है वो ऑक्सीजन का की अलामत है. प्रोस्पेरिटी, प्रोस्पर से प्रोस्पेरिटी. वी शुड प्रे फॉर द प्रोस्पेरिटी ऑफ आवर कंट्री. हमें अपने मुल्क की खुशहाली के लिए दुआ करनी चाहिए. डेकोरेट से डेकोरेशन. द प्रिंसिपल एडमायर्ड द डेकोरेशन ऑफ आवर क्लास. इनकरेज से इनकरेजमेंट. द प्राइजेज शुड बी गिवन फॉर द इनकरेजमेंट ऑफ न्यू टैलेंट. नए टैलेंट के हौसला अफजाई के लिए इनामात देने चाहिए. नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ रिलेटेड टू द ट्रांसलेशन. सो द सी क्वेश्चन, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैराग्राफ इनटू उर्दू. यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया गया है, पैराग्राफ नंबर 1, इसको हमने उर्दू में ट्रांसलेट करना है. ठीक है. इट इज़ अ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस फॉर अडल्ट टू गिव चिल्ड्रन लिटिल रेड इन्वेलप्स फिल्ड विद मनी इन ऑर्डर टू सिम्बलाइज वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर द कमिंग ईयर. It is also common for elders to present red packets to unmarried member of the family. Envelopes are not to be opened until the recipient has left the home of the giver. And the translation is, बालगों में ये रस्म पाई जाती है कि वह बच्चों को रुपयों से भरे हुए सुर्ख रंग के लिफाफे आने वाले साल के लिए दौलत और खुशहाली की अलामत के तौर पर देते हैं. बड़ों में ये भी मामूल है कि वो ख़ानदान के गैर शादीशुदा अफराद को सुर्ख लिफाफे पेश करते हैं. लिफाफों को उस वक्त तक नहीं खोला जाता जब तक कि वसूल कनिंदा देने वाले के घर से रुखसत ना हो जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अबाउट द कम्प्रीहेंशन, रीडिंग कम्प्रीहेंशन. फर्स्ट वन, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन. सो देयर आर सम MCQs. चाइनीज़ न्यू ईयर्स फॉल्स समवेयर डैश. हाँ जी, यहाँ पर क्या आएगा, इसके अंदर हमारे पास 3 ऑप्शन है. A January 21st, B January 20, C between January 21st and February 20th. So the correct answer is C, between January 21st and the February 20th. Second one, paragraph 1 gives. Paragraph 1 जो है वो हमें क्या बताता है, and the correct answer is B, specific details of the Chinese New Year. चीनियों का जो नया साल है उसके बारे में ख़ास किस्म की मालूमात हमें देता है. फर्स्ट पैराग्राफ. क्वेश्चन नंबर 3, इट इज़ कस्टमरी फॉर फैमिलीज टू थॉरोली क्लीन देयर हाउसेज डैश. सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ए. ठीक है, बिफोर द फर्स्ट डे ऑफ द न्यू ईयर. कि जो रिवाज है कि वहाँ पे जो फैमिलीज हैं वो अपने घरों को कब साफ़ करती हैं, नए साल के आने से पहले. ठीक है, उसके पहले दिन से आने से पहले. नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, हैंगिंग अप साइंस एंड पोस्टर्स ऑन डोर्स एंड विंडोज़ मीन. हाँ जी, जो दरवाज़ों के ऊपर उन्होंने तस्वीरें या पोस्टर्स वगैरह जो लगाए होते हैं उनका क्या मतलब है. सो द आंसर इज़ सी, लक एंड हैप्पीनेस, खुशी और किस्मत के बारे में. ठीक है. नेक्स्ट फिफ्थ वन, एनवेलप्स आर नॉट टू बी ओपनड अनटिल. एनवेलप्स को कब तक नहीं खोला जाता. सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ बी, the recipient has left the home of the giver. Next question is also about the comprehension. Answer the following questions. First question is, when does Chinese New Year start? चीनियों का नया साल कब स्टार्ट होता है. Chinese New Year typically falls somewhere between 21st and February 20th. ठीक है, चीनियों का नया साल जो है वो 21 जनवरी और 20 फरवरी के दरमियान में शुरू होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू चाइनीज़ फैमिलीज़ गो
thorough cleaning of their houses before New Year's Day? चीनी ख़ानदान नए साल के दिन से पहले अपने घरों की मुकम्मल सफाई क्यों करते हैं? एंड द आंसर इज़ Chinese families do thorough cleaning of their houses before New Year's days to clear out any bad luck from the previous year and to make the house ready to accept good luck for the coming year. वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो यकीन रखते हैं कि बात पिछले साल की कोई भी बदबख्ती ख़त्म कर देगी और आने वाले साल में उनके लिए खुशकिस्मती का सबब बनेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. विच कलर इज़ नॉट अलाउड एंड विच कलर इज़ इनकरेज्ड ऑन चाइनीज़ न्यू ईयर्स? वाई? हाँ जी, चीनियों के नए साल पर किस रंग की इजाज़त नहीं दी जाती और किस रंग की हौसला अफजाई की जाती है और क्यों? सो द आंसर इज़ वेयरिंग ब्लैक इज़ नॉट अलाउड ड्यू टू इट्स एसोसिएशन विद डेथ. However, wearing red is encouraged as the color is associated with warding off bad spirits. चीनियों के नए साल पर काले रंग की इजाज़त नहीं दी जाती क्योंकि ये मौत की अलामत होती है और सुर्ख रंग पहनने की हौसला अफजाई की जाती है क्योंकि ये बदरूहों से हिफाजत में मदद देता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. What do decorations on doors and window symbolize? दरवाज़ों और खिड़कियों पर ज़ेबाइशी अशिया किस चीज़ की अलामत बनती हैं? एंड द आंसर इज़ the decorations on doors and windows symbolize the coming of spring and a new beginning of the with luck and happiness. ये जो डेकोरेशन की जो चीज़ें हैं ये एक तो बाहर के आने की बताती हैं, दूसरा खुशकिस्मती और खुशहाली की अलामत समझी जाती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ न्यू ईयर्स इवनिंग डिनर? हाँ जी, नए साल के जो खाना होता है शाम का उसकी क्या अहमियत है? द न्यू ईयर्स इवनिंग डिनर हैव ग्रेट सिग्निफिकेंस. इट इज़ अ टिपिकल फॉर अ चाइनीज़ फैमिली टू मेक 8 to 9 डिशेज फॉर द न्यू ईयर्स डिनर because in Chinese language the word 8 means prosperity and the word 9 means long lasting. नए साल से पिछले दिन के खाने की अहमियत यह है कि ख़ानदान के सारे अफराद अपने इख्तलाफात को भूलकर इसमें शिरकत करते हैं. अफराद आने वाले साल में ज़्यादा खुशी और खुशहाली हासिल करने की तवक्को रखते हैं क्योंकि चीनी ज़बान के अंदर लफ्ज़ 8 का मतलब होता है प्रॉस्पेरिटी यानी खुशहाली और लफ्ज़ 9 का मतलब होता है लॉन्ग लास्टिंग यानी कि ज़्यादा देर तक रहने वाली. तो इसलिए 8 से 9 डिशेस जो हैं वो तैयार की जाती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डू द लिटिल रेड एनवेलप्स फिल्ड विद मनी सिम्बोलाइज? पैसों से भरे हुए छोटे सुर्ख लिफाफे किस चीज़ की अलामत होते हैं? सो द आंसर इज़ द लिटिल रेड एनवेलप्स फिल्ड विद मनी सिम्बोलाइज वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर द कमिंग ईयर. सुर्ख लिफाफे आने वाले नए साल के लिए दौलत और खुशहाली की अलामत हो सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ चाइनीज़ न्यू ईयर फॉर चाइनीज़ फैमिलीज़? चीनी ख़ानदानों के लिए चीनी साल नौ या नए साल की क्या अहमियत है? सो द आंसर इज़ Chinese New Year is very important for Chinese families because it is a time when families should come together in order to give thanks for the year that has passed and reinvigorate themselves for the coming year. चीनी साल जो है उसके मौके पर एक दूसरे के साथ अपने ताल्लुक़ जो हैं उनको मजबूत बनाते हैं. वो खुशियाँ मनाते हुए अपना वक्त गुजारते हैं और आने वाले साल के लिए अपने आप को ताकतवर बनाते हैं. There are some क्वेश्चंस रिलेटेड टू द ग्रामर. फर्स्ट वन इज़ कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन बेटा हम पहले इसको डिस्कस कर चुके हैं पिछली क्लास में कि कलेक्टिव नाउन ऐसा नाउन जो कि बहुत ज़्यादा चीज़ों के लिए एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए कलेक्टिव नाउन होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल आर्मी जो है एक वर्ड है लेकिन उसके अंदर एक शख्स नहीं होता, उसके अंदर बहुत ज़्यादा आर्मी के सोल्जर्स होते हैं. उन सारे सोल्जर्स के लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है, इसको हम आर्मी कहते हैं. ठीक है. There is a question related to the collective noun. Fill in the blanks with the correct collective noun. यहाँ पे हमने इनको खाली जगहों को पुर करना है सही collective noun की तरह उनको लगाकर. First one, it is typical for a Chinese dash to make 8 to 9 dishes for the New Year's evening. So the correct answer is family. ठीक है, यहाँ पर आएगा family. Second one, the dash applauded heartily at the end of the concert. हाँ जी, के कॉन्सर्ट के आखिर में किसने जो है वो खुशी से तालियां बजाई? यहाँ पर आएगा बेटा ऑडियंस ने. ठीक है, क्योंकि उन कॉन्सर्ट देखने वाली ऑडियंस थी, सुनने वाली.
थर्ड वन, द डैश हैज़ जस्ट हैड अ फिजिक्स लेसन। फिजिक्स का लेसन कहाँ पर दिया जा रहा है? क्लास में दिया जाएगा, ऑब्वियसली रिलेटेड टू द एजुकेशन। द डैश ऑफ रॉबर्स वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस, तो यहाँ पर आएगा गैंग। फिफ्थ वन, अ डैश ऑफ पीपल गैदर्ड एट द एक्सीडेंट साइड, तो यहाँ पर आएगा क्राउड। सिक्स वन, द डैश टुक मैनी इंपॉर्टेंट डिसीजन एट इट्स मंथली मीटिंग, तो यहाँ पर आएगा कमेटी। सेवंथ वन, द डैश ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स लुक्ड स्मार्ट इन देयर यूनिफॉर्म, क्रू। यूज़ ऑफ मस्ट एंड मस्ट नॉट, ठीक है, यह ग्रामर से रिलेटेड है। फर्स्ट वन इज मस्ट कहाँ पर इस्तेमाल होता है और मस्ट नॉट कहाँ पर इस्तेमाल होता है। तो स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन के लिए, यानी कि ऑब्लिगेशन होता है फरीज़ा, ठीक है, जहाँ पर हमें कोई काम लाजमी तौर पर अंजाम देना हो, फ़र्ज़ हो वो हमारा, वहाँ पर हम मस्ट का वर्ड यूज़ करते हैं। और मस्ट नॉट का वर्ड यूज़ करते हैं हम स्ट्रॉन्ग प्रोहिबिशन के लिए, ठीक है, यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ पे हमें सख्ती से इनकार करना हो या ममानियत करनी हो किसी चीज़ की, उसके लिए हम मस्ट नॉट का वर्ड यूज़ करते हैं। तो मस्ट का अगर हम सेंटेंस देखें, एग्जांपल, ऑल क्लीनिंग मस्ट बी फिनिश्ड बिफोर न्यू ईयर्स डे। देखें, ये एक लाजमी फरीज़ा समझा जाता है कि जो सफाई है चीनियों की वो नए साल के दिन से पहले ख़त्म हो जानी चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे मस्ट आएगा। मदर यू मस्ट नॉट प्ले विद मैचेस, हाँ जी, तो देखें यहाँ पर सख्ती से मना किया जा रहा है माँ की तरफ से। क्वेश्चन बी रिलेटेड टू द मस्ट एंड मस्ट नॉट ग्रामर वर्ड्स। फर्स्ट वन इज शी डैश ईट सो मच शुगर, तो यहाँ पर मना किया जा सकता है कि मतलब कि ज़्यादा शुगर नहीं खानी चाहिए, तो मस्ट नॉट आएगा, ठीक है। सेकंड, स्टूडेंट्स डैश पास एन एंट्रेंस एग्जामिनेशन टू स्टडी एट दिस स्कूल, तो यहाँ पर मस्ट आएगा, ठीक है, जोर दिया जा रहा है किसी भी चीज़ के ऊपर, ऑब्लिगेशन ये बताई जा रही है। थर्ड, यू डैश वॉच सो मच टेलीविजन, यू मस्ट नॉट, मतलब कि ज़्यादा टीवी नहीं देखना चाहिए, प्रोहिबिशन पे आ रहा है। फोर्थ वन, ही डैश टेक सम मेडिसन फॉर डैट कफ, मस्ट, यहाँ पर लाजमी एक चीज़ बताई जा रही है। विजिटर्स डैश स्मोक, तो मस्ट नॉट स्मोक, ठीक है। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस रिलेटेड टू द ग्रामर। सी क्वेश्चन, मेक द प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड और प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस सेंटेंसेस, हाँ जी, यहाँ पर उन्होंने दिए हुए कुछ सेंटेंसेस, वहाँ पे फिलअप करना है हमने उनको। फर्स्ट वन, यू डो नॉट लाइक चॉकलेट, तो यहाँ पर अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएं तो ये आएगा डू नॉट, ठीक है, यू डू नॉट लाइक चॉकलेट। सेकेंड वन, शी नॉट स्टडी एट द मोमेंट, शी इज़ नॉट स्टडिंग एट द मोमेंट, एट द मतलब आगे उस वक्त की बात की जा रही है, ठीक है, यानी कि कॉन्टीन्यूस की बात की जा रही है, एट द मोमेंट। थर्ड वन, दे नॉट ईट राइस एवरी डे, तो यहाँ पर आएगा डू नॉट ईट राइस एवरी डे। वी नाउ, नाउ आ गया तो मतलब कि प्रेजेंट की कॉन्टीन्यूस की बात की जा रही है कि अभी जारी है, वी आर नॉट वर्किंग नाउ। फिफ्थ वन, इट अ लॉट हेयर, ठीक है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि इट रेन से रिलेटेड, तो इट इज़ रेनिंग, यानी कि हम इसको प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस बनाएंगे, इट इज़ रेनिंग, ठीक है। आई डैश ऑन हॉलीडे टुमारो, आई एम गोइंग ऑन हॉलीडे टुमारो। नेक्स्ट क्वेश्चन डी, also related to the grammar, punctuate the following paragraph, इस पैराग्राफ को पंक्चुएशन के ज़रिए ठीक करना है। फर्स्टली हमने ओ को कैपिटल करना है क्योंकि फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, ऑन का जो ओ है वो कैपिटल होगा। ऑन द ईव ऑफ द चाइनीज़ न्यू ईयर, चाइनीज़ का सी कैपिटल, न्यू का एन कैपिटल एंड वाई का ईयर का वाई कैपिटल। इट इज़ कस्टमरी टू विजिट रिलेटिव्स एंड partake in a large dinner where a number of specific food are served, तो यहाँ पर बात ख़त्म हो गई है, तो यहाँ पर फुल स्टॉप आएगा सर्व्ड के बाद, ठीक है। उसके बाद इट का जो आई है वो कैपिटल होगा। इट इज़ टिपिकल फॉर अ चाइनीज़ का सी कैपिटल क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। फैमिली, टू मेक 8
to 9 dishes. For the new का N कैपिटल, एयर का Y कैपिटल और यहाँ पर एयर्स के दरमियान में वो अपोस्ट्रोफी आएगा. डिनर बिकॉज इन चाइनीज़ लैंग्वेज द वर्ड 8, यहाँ पर 8 का जो वर्ड है वो हमने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखना है. प्रोस्पेरिटी का वर्ड भी उसके अंदर आएगा इन्वर्टेड कॉमास में. 9 का वर्ड भी इन्वर्टेड कॉमास में आएगा और लॉन्ग लास्टिंग भी आएगा. ठीक है, और लास्ट पे फुल स्टॉप आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द grammar. Make a list of words that have both primary and secondary stresses. So the answer is messenger, messiah, messianic, messy, mestizo, mestiza, mercenary, metalinguistic, metallifer, metalloid, metallurgist, metallurgy and metamorphic are the words. फर्स्ट वन, हाउ मैनी सिलेबल्स ईच ऑफ दीज वर्ड्स हैव. यहाँ पर जितने भी वर्ड्स हैं उनके कितने सिलेबल्स हैं. मैसेंजर के 3 सिलेबल्स हैं. मेसिया के 2 सिलेबल्स हैं. मेटालिंग्विस्टिक के मेटालिंग्विस्टिक 4 सिलेबल्स हैं. मेटल्ड 2 सिलेबल्स. मेटलर्जिस्ट 4 सिलेबल्स. मेटलर्जी 3 सिलेबल्स एंड मेटामॉर्फोज 3 सिलेबल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिलेबल हैज़ प्राइमरी स्ट्रेस एंड विच हैज़ सेकेंडरी स्ट्रेस. Measure, primary stress is on M. Messiah, secondary stress is on S. Metalinguistic, primary stress is on M and metallic primary is on E. Metamorphose, primary stress is on M and secondary one is on M in the secondary syllable. Students, next question is related to the writing skills. Summarize the lesson by arranging the celebration of Chinese New Year. हाँ जी, चीनियों का जो नया साल है उसकी तरतीब यानी कि तकरीबात जो हैं उनको तरतीब के साथ बताना है. नाउ वी स्टार्ट चाइनीज़ न्यू ईयर. चाइनीज़ न्यू ईयर इज़ अ वेरी कलरफुल फेस्टिवल. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ द चाइनीज़. इट इज़ सेलिब्रेटेड अकॉर्डिंग टू चाइनीज़ ल्यूनर कैलेंडर. द सेलिब्रेशन ऑफ दिस फेस्टिवल्स आर वेरी कलरफुल एंड सिम्बॉलिक. इट्स मेन पर्पज़ इज़ टू ब्रिंग गुड लक एंड वेलकम द अराइवल ऑफ स्प्रिंग. The Chinese celebrate this festival with great favor. Before the first day of the new year, families clean out their houses with great care. They do this to remove bad luck and bring good for them. They prefer to wear red clothes, keep off evil spirit. They avoid wearing black. Doors and windows are decorated with signs and posters to bring happiness and good luck. चीनियों का नया साल एक बहुत ही रंगारंग त्यौहार है. ये चीनियों का एक अहम त्यौहार है. इसे चीनियों के कमरी कैलेंडर के मुताबिक मनाया जाता है. इस त्यौहार की तकरीबात बहुत रंगारंग और अलामती होती हैं. इसका बुनियादी मकसद खुशकिस्मती को लाना और बहार की आमद को खुशामदीद करना है. चीन वाले इस त्यौहार को बहुत जोशो खरोश के साथ मनाते हैं. साल के पहले दिन से पहले ख़ानदान बड़ी एहतियात से अपने घरों की सफाई करते हैं. वो ये काम बदकिस्मती को ख़त्म करने और अपने लिए खुशकिस्मती लाने के लिए करते हैं. वो बदरूहों को दूर रखने के लिए सुर्ख कपड़े पहनते हैं. वो काला रंग पहनने से गुरेज करते हैं. खुशी और खुशबख्ती लाने के लिए साइज और पोस्टर के साथ दरवाजे और खिड़कियाँ सजाते हैं. ऑन द ईव ऑफ चाइनीज़ न्यू ईयर there is a big family dinner which consists of 8 or 9 dishes. All the members of the family gather and partake in this dinner. Elders give children and unmarried people red packets containing money. Every year is associated with one of the 12 of the Chinese zodiac. These animals are represented in decorations. The festival shows the Chinese religious symbolism. It helps them forget their differences and begin the new year with न्यू होप एंड एक्सपेक्टेशंस. चीनियों के नए साल से पिछली शाम को एक बड़ा ख़ानदानी खाना होता है जो 8 या 9 खानों पर मुश्तमिल होता है. ख़ानदानों के सब अफराद इकट्ठे होकर इस खाने में शरीक होते हैं. बड़े बच्चों और गैर शादीशुदा लोगों को सुर्ख पैकेट देते हैं जिनमें पैसे होते हैं. हर साल को चीनियों के नजूम के 12 जानवरों के साथ मुंसलिक किया जाता है. इन जानवरों की नुमाइंदगी ज़ेबाइशी सामान में की जाती है. ये त्यौहार चीनियों की मजहबी अलामियत
या कौमियत परस्ती को ज़ाहिर करता है। ये उनकी अपने इख्तिलाफ़ात को भुलाने और नए साल की नई उम्मीदों और तवक्कुआत के साथ शुरू करने में मदद देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बी, ऑल्सो रिलेटेड टू द राइटिंग स्किल्स। राइट एन ऐसे ऑन आर कल्चरल फेस्टिवल्स। ठीक है, आर कल्चरल फेस्टिवल के ऊपर हमने 220 to 250 वर्ड्स पर एक ऐसे लिखना है इन तमाम चीज़ों को फॉलो करते हुए। सो द आंसर इज, our cultural festivals show our culture, our lifestyle, and our ideas. They create a sense of harmony, brotherhood, and selflessness among the people. Basant is one of our cultural festival. It is a very colorful and interesting festival. It is characterized by the thrilling activities of kite flying. It is usually celebrated in the first week of February. It is celebrated with great fervor and Pakistan as well as in India. हमारे सकाफ़ती त्यौहार हमारी सकाफ़त, हमारा तर्ज़ ज़िंदगी और हमारे ख़यालात ज़ाहिर करते हैं। वो लोगों में हम आहंगी, भाईचारे और अख़ुवत का जज्बा पैदा करते हैं। बसंत हमारे सकाफ़ती त्यौहारों में से एक त्यौहार है। ये बहुत रंगारंग और दिलचस्प त्यौहार है। पतंगबाजी की सनसनीखेज़ सरगर्मी इसकी खसूसियत समझी जाती है। इसे अमूमन फरवरी के पहले हफ्ते में मनाया जाता है। ये पाकिस्तान और भारत में बहुत जोशो खरोश से मनाया जाता है। द प्रिपरेशंस फॉर बसंत स्टार्ट 1 month in advance. People buy many kites of different shapes and sizes. They also buy yellow clothes to wear on this festival. They clean out the roof of their houses. Lights are fixed on tops to fly kites at night. Basant was normally a festival of the Hindus, but as before the Pakistan, the Muslims and the Hindus lived together, the festival became popular with the Muslims too. Now in Pakistan, almost everyone celebrates this festival without considering its origin. बसंत की तैयारियां एक माह पहले ही से शुरू हो जाती हैं। लोग मुख्तलिफ़ शक्लों और साइज़ की बहुत सी पतंगें ख़रीदते हैं। वो इस त्यौहार पर पहनने के लिए जर्द कपड़े भी ख़रीदते हैं। वो अपने घरों की छतों की सफाई करते हैं। घरों की छतों पर रात के वक्त पतंगे उड़ाने के लिए लाइटें भी लगाई जाती हैं। बसंत हकीकत में हिंदुओं का त्यौहार था, लेकिन चूँकि तक़सीम से कबल मुसलमान और हिंदू इकट्ठे रहते थे तो ये त्यौहार मुसलमानों में भी मकबूल हो गया। अब पाकिस्तान में तकरीबन हर कोई इस त्यौहार के माखज़ पर गौर किए बगैर उसे मनाता है। On the day of Basant, the roof of the houses are filled with people of all ages. There is a great hustle and bustle in parks and other open spaces. The sky is totally covered with kites of the different colors and sizes. Kite flying is a dangerous and expensive game. Many people get injured and die on the day of Basant, so now the government has banned kite flying. बसंत के रोज़ घरों की छतें तमाम उम्र के लोगों से भर जाती हैं। पार्कों और दीगर खुली जगहों पर बहुत ज़्यादा चहल पहल होती है। आसमान मुख्तलिफ रंगों और साइज़ की पतंगों से भर जाता है। पतंगबाजी एक ख़तरनाक और महंगा खेल है। बसंत वाले दिन बहुत से लोग ज़ख्मी होते हैं और मर भी जाते हैं, लिहाजा हुकूमत ने पतंगबाजी पर पाबंदी लगा दी है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप आपको इस चैप्टर की समझ आ गई होगी। बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो से आगाह रह सकें। शुक्रिया।